Imagine, each time you go to a diagnostic center, your study and report move into your mobile MediLocker without any ado, directly from the modality that created it. No uploading oneself. Each time you require your medical records, consultation, medication, you open up your MediLocker. Each famous specialist, each big hospital in any super specialty field available for consultation, second opinion to all without geographical boundaries through MediLocker. Medical insurance, getting all paperwork needed automatically from MediLocker. Special services to follow your health parameters over time to create alarms to prevent, to diagnose early. Imagine a diagnostic modality not only choose out a study but also a report. A doctor gets all support systems, all technical and academic resources seamlessly. All radiologists available to all centers. All doctors available to all citizens. All data available anonymously for all medical research. Imagine all medical modalities, service providers, doctors, patients, insurance hooked onto a medical network. Imagine all these players talking seamlessly over this network, interacting, serving each other. Imagine all that's needed to be a part of health ecosystem is to hook onto a medical network. Imagine all that's needed to access all management, academic and collaboration systems is to hook onto a medical network. Imagine a universal medical network. Imagine Universal MedNet. So, good evening, everyone. Today, I, Anshika Chaudhary, General Secretary, Games and Sports, IIT Kanpur, would be the host for today's evening. And we have Mr. Devendra Jhajarya, sir, with us. He's the Indian Paralympic javelin thrower. He's the first Indian Paralympian to win 2 gold medals at the Paralympics. He won his first gold medal in the javelin throw at 2004 Olympics. At 2016 Olympics, he won a second gold medal in the same event, bettering his previous world record. He has won various awards and recognitions, including Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Padma Shri Award, Arjun Awards, and many more in the list. So, sir, सबसे पहला सवाल हमारा कि what inspires you? आपकी सबसे बड़ी inspiration क्या है? एक्चुअली आप सबसे पहले तो मैं आईआईटी कानपुर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस वर्चुअल प्रोग्राम में आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। यूथ के बीच में आने से कहीं न कहीं मैं मानता हूँ मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी और आने वाले टाइम में मैं शायद बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। बिल्कुल सर। इंस्पायर कैसा होता है कि आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो। जैसे देखा जाए तो मैंने जो मिनिमम में शुरुआत की थी मेरी लाइफ में, मतलब कुछ भी नहीं था, स्पोर्ट्स के नाम पे मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं मैंने लाइफ में देखा कि ऐसे लोगों की मैंने स्टोरी बहुत पढ़ी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया लाइफ में, कुछ भी नहीं था उनके पास। जैसे देखा जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनके पास बुक नहीं थी, वो दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट बना। मिल्खा सिंह जी जिनके पास शूज नहीं हुआ करते थे, नंगे पैर दौड़ते थे, जिन्होंने ओलंपिक तक पार्टिसिपेशन किया, इतने मेडल जीते और इतिहास बनाया। तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। सर, मतलब जब आप 8 साल के थे तब आपका बायां हाथ आपने खो दिया था एक हादसे में। सर, उसके बाद आपकी लाइफ कितनी टफ हो गई थी और आपको जावलिन थ्रो में भारत के लिए खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आज भी मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया था और एक हाथ गंवा के मैं जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, तो 8 साल के बच्चे को बहुत ही कितना बुरा फील होगा। 6 महीने तक एक हॉस्पिटल में एक बच्चे को रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 8 साल का बच्चा 6 महीने घर से बाहर ही नहीं रह सकता, लेकिन मुझे मजबूरन रहना पड़ा। उसके बाद जो मैंने उस टाइम जो मैंने दर्द झेले मेरी जिंदगी में, इतना पेन होता था, पूरी बॉडी जल गई थी मेरी। और विशेष तौर पे जब मैं वापस घर आया तो
इतना होपलेस था कि मैं घर से बाहर नहीं निकला। हम्म, बच्चे क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मैं कैसे बच्चों के साथ खेलूंगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरी मम्मी और पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला कि कुछ नहीं है, और बच्चों जैसे ही हो आप, जाइए बच्चों के साथ खेलिए। हम्म, तो वहाँ से एक छोटी-सी शुरुआत की थी मैंने खेलने की, और उसके बाद अ, घर से बाहर निकलने की जो मेरी शुरुआत थी वो बहुत चैलेंजिंग थी उस टाइम में। और मैं स्पोर्ट्स में यदि सबसे बड़ा किसी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तो मैं मेरे मम्मी-पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना नहीं देखा इस देश में जो ज़्यादातर लोग देखते हैं। मुझे हम्म, खिलाड़ी बनाने का सपना देखा उन्होंने, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम में। और खेल की शुरुआत मैंने स्कूली लेवल पे की बच्चों के साथ। उसमें मेरे साथ बहुत चैलेंजिंग हुए, इतने चैलेंजिंग कि मैं ग्राउंड में भी नहीं जा सकता था कि आप डिफरेंटली एबल हो, कैसे जाओगे आप ग्राउंड में? लोग इतने क्वेश्चन करेंगे आपसे। एक 15 साल का लड़का वो क्वेश्चन शायद नहीं झेल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर था कि मुझे गेम करना चाहिए। और यदि देखा जाए इंडिया लेवल पे, तो मैंने जब मैं कॉलेज लेवल पे आया था, हम्म, मेरा स्कूली लेवल पे ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं कोई ओलंपिक खेलूँ या इंडिया से खेलूँ। मेरा एक सपना था कि मैं खेलूँ। लोग मुझे कमज़ोर ना कहें, दुबला-पतला ना कहें, हम्म, मैं कम से कम औरों के बराबर आऊँ। लेकिन जब कॉलेज लेवल पे आया, मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकली। मैं एबल बॉडी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल लिया, जूनियर नेशनल खेला एबल बॉडीज में। तब मुझे पता चला कि मैं इंडिया से खेल सकता हूँ। हम्म, उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि मुझे इंडिया से खेलने हैं, और मेरा वो एक ड्रीम था। कहीं न कहीं मेरे अंदर वो जुनून था कि मुझे इंडिया से खेलना है। एक बार मुझे इंडिया का कलर मिलना चाहिए। हम्म, जी सर। सर मतलब आपके स्पोर्टिंग करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आपने अभी बताया कि कॉलेज में आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप इंडिया के लिए खेलेंगे। तो आपके मेजर इवेंट्स कौन से थे जहाँ से आपको पूरा स्टार्ट मिला अपने करियर के लिए? नहीं, ओपनिंग तो मेरी 10वीं कक्षा से एक मेरे ग्राम के पास में ही स्कूल थी, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो उस टाइम बहुत कम इक्विपमेंट हुआ करते थे हमारे। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको एस्ट्रोटर्फ हॉकी मिलेगी, सिंथेटिक ट्रैक मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैडमिंटन हॉल मिलेगा या टेनिस कोर्ट मिलेगा। हमारे पास मिनिमम था कि आपके पास शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन है, और रनिंग कर सकते हो, कबड्डी या खो-खो खेल सकते हो आप। हम्म, तो मैंने जेवलिन को चुना वहाँ से, और शायद मेरा यही इवेंट मुझे आज तक, इसी में मैं सीख रहा हूँ। बहुत ही लंबा समय हो गया इस करियर को लेते लेते, मेरे को शायद मेरे को 25 साल हो गए इसमें। हम्म, तो अभी भी सीख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं सीख पाया हूँ, नहीं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। सर सर, आपका जो ओलंपिक्स की जर्नी थी, तो जब आपने दूसरे बार ओलंपिक्स में गोल्ड लिया, तो आपने अपना खुद का ही इतने साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उस मोमेंट पे। तो सर उस समय आपको कैसा लगा था? सच बताऊं तो मैं, जो मेरी 2004 की परफॉर्मेंस थी 62.15 मीटर, उसको 12 साल में कोई ब्रेक नहीं कर पाया उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को। हम्म, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये थी कि मेरी मुझसे ही फाइट है। हम्म, मेरा टारगेट ये था कि मैं 62 प्लस लगाऊंगा और मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है। हम्म, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग प्लान में हमने बहुत बदलाव किया। कई एक्सरसाइजें हमें छोड़नी पड़ी, कई नए नई एक्सरसाइजें करनी पड़ी, क्योंकि जब 2004 में मैंने मेडल लिया, मेरी 22-23 साल उम्र थी सिर्फ। हम्म, लेकिन जब मैं 16 में पहुंचा तो मेरी हम्म, 35 साल उम्र हो गई थी। तो कई लोग मुझे ये क्वेश्चन करते थे कि क्या 35 साल में आप मेडल ले पाओगे? तो मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनको मैंने कहा, मेडल की आप क्या बात करते हो, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक करूंगा, आप देखना। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ फिर से गोल्ड मेडल है। हाँ जी सर। सर मतलब ऐसे बीच में 12 साल का ब्रेक आया ऑलमोस्ट, मतलब दो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में वो इवेंट ही नहीं था। तो सर उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब आपने कभी गेम को छोड़ने की या फिर वापस उसमें अपनी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करी?
उस ड्यूरेशन में, इतने बड़े ब्रेक में? दरअसल स्पोर्ट्स के अलावा मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, और स्पोर्ट्स मेरी हॉबी भी है, मेरा जुनून भी है, और मेरी विल पावर भी है। तो कहीं न कहीं 2008 में जब मेरा इवेंट नहीं आया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ट्रेनिंग करूँगा, मेरा 12वीं इवेंट आएगा। लेकिन जब 2010 में लंदन पैरालंपिक्स के इवेंट अनाउंस हुए, उसमें मेरा नहीं आया। तब मैं बहुत ही होपलेस हो गया था कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए लाइफ में, मैं करके दिखाना चाहता हूँ, मैं गोल्ड मेडल लेना चाहता हूँ देश के लिए। 10 में फिर मैंने सोचा गेम को छोड़ दिया जाए, शायद 16 बहुत लंबा हो जाएगा। घर पे बैठ के डिसीजन लिए, लेकिन घर वालों ने सभी ने कहा कि, क्योंकि उस टाइम मेरी वाइफ भी खेलती थी, तो मैंने कहा शायद मैं आपको प्रमोट करूं अच्छे से, आप इंडिया से खेलेंगे, आप मेडल लेंगे, कबड्डी में थी वो। लेकिन घर वालों ने डिसाइड किया कि नहीं, गेम आपको करना है, बेस्ट करना है आपको, आप कर सकते हो, 16 तक भी कर सकते हो आप। क्योंकि मैं जब 2010 तक मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग करता था, कहीं न कहीं अंदर था कि घर वालों का विशेष तौर पे कि ये कर लेगा 16 तक। उस टाइम मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 16 तक चलूँगा। क्योंकि आपका जब इवेंट नहीं आता है, 12 में नहीं आया, तो एक होपलेस हो गया था मैं। उस टाइम मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। जी सर। सर, जैसे यहाँ पे आपने अपनी वाइफ के बारे में बताया, तो सर विमेन इन स्पोर्ट्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है कि आज की डेट में हमारे यहाँ से इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, तो उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम? आपका उसको लेके क्या आपका ओपिनियन रहेगा? इसको, वुमेन स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे कंपनियाँ हैं, उनका सीएसआर फंड है, 2% होता है। स्पेशली वो एक ऐसी प्लान चला सकते हैं कि सीएसआर अपनी सिर्फ वुमेन स्पोर्ट्स के लिए दे सकते हैं वो। और इसके अलावा जैसे एक आपको स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करनी होगी कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, तो शायद हो सकता है आपको कुछ भेदभाव भी देखने को। प्रतिभाएं आज भी देखा जाए तो गांव से निकलती हैं, स्पोर्ट्स में खास करके। तो आप ग्रास रूट पे जाके ऐसी प्लान बना सकते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कि स्पेशल प्लान चला सकते हो आपकी वुमेन्स पे, हम ये काम कर सकते हैं, उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग प्लान बना सकते हैं हम, उनके लिए अच्छे न्यूट्रिशन नियुक्त कर सकते हैं हम, फिटनेस ट्रेनर लगा सकते हैं उनके लिए। क्योंकि आज भी देखा जाए तो वुमेन्स से इंडिया का स्पोर्ट्स बहुत आगे है, आज भी अच्छा है, नो डाउट। जी सर। जी। और सर, आप हमें थोड़ी-सी अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट जो आप आज की डेट में भी फॉलो करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे? अभी मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, मैं टोक्यो की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लगभग 4 महीने से भी कम टाइम बचा है। मेरा 30 अगस्त को इवेंट है, तो आज 4 ओह! महीने से कम टाइम हुआ। तो मेरी ट्रेनिंग प्लान अच्छी चल रही है। अभी मेरे कोच हैं जी। सुनील तंवर जी, जो मेरे को 2016 रियो पैरालंपिक्स में मेडल दिला चुके हैं। 2015 से वही मेरे कोच हैं। अभी जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मेरे जो ट्रेनर हैं, वो लक्ष्य बत्रा जी हैं, जो कि मुझे देख रहे हैं अभी। जी। एक हमारी टीम है, वो टीम बना के हम काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से हम अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, और होपफुली मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है टोक्यो में, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से जी ब्रेक सर। करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, जैसे आपने कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, काफ़ी आपको अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। तो सर, आपके लिए इन सारे मोमेंट्स में से सबसे ऑनरेबल मोमेंट कौन-सा था? उस वक़्त आप क्या फ़ील कर रहे थे? एक्चुअली आपको कोई भी अवार्ड, जो सम्मान मिलता है, आपको कोई मंच मिलती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और सबसे बड़ी ये होती है कि जब मुझे राजीव गांधी खेल रत्न मिल रहा था, तो मुझे मीडिया ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि आप पैरा स्पोर्ट्स में क्या बदलाव देखा है। हुँ, तो मैंने उनको जवाब दिया कि पैरा स्पोर्ट्स में आज से जो
25 साल पहले 20 साल पहले मैंने जो शुरुआत की थी, तो मुझे लोग ग्राउंड में एंट्री नहीं करने देते थे। और आज जब कोई पैरा खिलाड़ी ग्राउंड में आता है तो वो बहुत से लोग बोलते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया जैसा बनना है तेरे। तो ये जो बदलाव है वो मुझे आज भी मेरे लिए सबसे अच्छा महसूस करता है। और अवार्ड जितने भी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, मान सम्मान दिया जाता है, उससे कॉन्फिडेंस होता है। आपको कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आपसे प्रेरणा लेकर के यदि अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपसे उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं सकती। सर, जैसे यहाँ पर ही आपने बताया कि आजकल के जो यंग एथलीट्स हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो सर उनके लिए आपका कोई मैसेज या आप उनको कुछ स्पेशली बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, अपने आप पे विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। मैं खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी फील्ड में जाएं, अपने आप पे ये विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद लाइफ में सक्सेस होने के लिए मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 1 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं आता। मैंने जेवलिन थ्रो की शुरुआत 95 में की थी। 2004 में जाके मुझे मेडल मिला 9 साल बाद में। और यदि 16 को देखें तो फिर आपका 21 साल बाद में, और यदि मेरा टोक्यो में आता है तो फिर 25 साल बाद में। तो ये शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, आपको बहुत धैर्य के साथ काम करना होगा। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप एक जुनून के साथ अपने फील्ड में लगे, एक वेल डिसिप्लिन में काम करें, सफलता उससे मिलेगी। जी सर। सर, जैसे हमारे जैसा जो भारत देश है, आपने भी इसके बारे में बताया कि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को इंजीनियरिंग हुआ, डॉक्टर हुआ, जो सेफ करियर होते हैं, जो मतलब सेफ लगते हैं कि हाँ स्टेबल करियर है, उनमें ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सर उसके लिए आपका कोई मैसेज कि आप क्या मानते हैं इस चीज में कि बच्चों को सेफ करियर के लिए प्रमोट करना चाहिए या फिर मतलब उन्हें जो जो चाहें वो करना देना चाहिए? मतलब उसमें आपका क्या ओपिनियन है या आपका क्या मैसेज है सबके लिए इसको लेके? एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स है वो लाइफ है। स्पोर्ट्स चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर हो, उनको भी करना है। क्योंकि जिंदगी में यदि लाइफ में आपको फिट रहना है तो स्पोर्ट्स करना होगा। आप देखते हैं, आपका शायद टूर किए होंगे आपने, अमेरिका यूरोप में जाएंगे तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से ओलंपिक मेडलिस्ट है। जी सर। यहाँ वहाँ के डॉक्टर हैं वो ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो हिंदुस्तान में हमें वो कल्चर डेवलप करनी होगी। दूसरी, सिर्फ आप ओलंपिक मेडल के लिए नहीं खेलना है। आप खेल में और बहुत संभावनाएं हैं जो हम लोगों को नजर नहीं आ रही। आप यदि स्पोर्ट्स किया है तो आप एक स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। आप एक बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो सकता है आप एक स्पोर्ट्स कंपनी के बहुत बड़े सीईओ बन सकते हो। स्पोर्ट्स इंजरी के आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो यदि आपने गेम किया तो स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं सिर्फ ओलंपिक मेडल ही, और भी बहुत से करियर है, लेकिन वो आज हिंदुस्तान में इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स की बहुत सी संभावनाएं हैं। सर, स्पोर्ट्स अगर अगर एक स्पोर्ट्स का करियर नहीं होता तो इसके अलावा सर आप क्या करियर ऑप्शन चूज करते लाइफ में? मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली है लाइफ में और मैंने दूसरा ऑप्शन सोचा ही नहीं था। बी प्लान मेरी लाइफ में बी प्लान थी नहीं। मैंने ये सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स करना बहुत अच्छा करना है, तो मेरे पास सच बताऊं तो बी प्लान नहीं थी, कोई बड़ी बी प्लान नहीं थी मेरे पास। ठीक है, ऑप्शन था कि मैं स्टडी करता था, ग्रेजुएशन करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब की मैं ट्राई करता, बस और कुछ नहीं था मेरे पास। तो सर आपकी अभी अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने के क्या प्लान्स हैं आगे के लिए? अभी तो मेरा
टोक्यो है ओलंपिक्स जो 4 महीने बाद में है, और टोक्यो के बाद में अभी तक मेरी टोक्यो तक की प्लान है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान बनाऊंगा मैं जो भी होगी, जी क्योंकि आप आपका सिर्फ मेरा सिंगल टारगेट है कि टोक्यो, बस जी सर, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत ज्यादा हमारी तरफ से विशेस हैं सर, बहुत आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए, कि सब बेस्ट रहे। थैंक यू। और सर कुछ क्वेश्चंस और हैं कि जैसे जब आप छोटे थे तो उस समय आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते थे? मैंने लाइफ में स्पोर्ट्स में जेवलिन के अलावा मैं एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, और मैं वॉलीबॉल खेलता था। क्रिकेट मेरा बहुत फेवरेट गेम रहा है। मैं एक जेवलिन थ्रोअर हूँ, तो आपको शायद हाँ जी पता होगा मेरे ख्याल से कि जेवलिन थ्रोअर एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है, तो मैं तेज गेंदबाज था। जी जी सर। सर अगर आपके पढ़ाई को लेके पूछे तो सर आप अपने बारे में अपने आप को कैसा स्टूडेंट बताना चाहेंगे, कि आप किस तरह के स्टूडेंट थे? मैं लास्ट वाली बेंच पे बैठता था, और मेरी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, सच बताऊं मैं आपको। मेरा सिर्फ स्पोर्ट्स एक माइंड था कि मैं स्पोर्ट्स करना है मुझे, और हालांकि घर वाले जरूर कहते थे कि पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, पर मेरा इतना मन नहीं लगता था पढ़ाई में। लेकिन स्पोर्ट्स मन से किया, पढ़ाई मैंने इतनी मन से नहीं की। लेकिन ये हमारा, मैं बताऊं आपको कि जो लास्ट बेंच में हम बैठते थे, आज से हम सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं। जी सर। सर आप अपने जो कोई भी गेम होता है, मैच होता है, उसमें जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, जो एंजाइटी होती है, मैच से पहले का जो डर होता है, एक्साइटमेंट होती है, सर उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपकी तरफ से। और आपको कोई, यदि आपका एक आईएएस का पेपर हो या एक बहुत बड़ा एग्जाम हो आपका किसी लेवल पे, एक डेमो के लिए आप तैयार हो, एक जा करके आपको देना, तो उसमें कितना फर्क होता है आप शायद जानते होंगे उसमें। जी जी वैसा ही स्पोर्ट्स है। मैं मेरी बताऊं तो मैंने लाइफ में, मेरे दिमाग में एक ही है कि मैंने 9-10 साल की उम्र में सब कुछ खो दिया था मेरी लाइफ में। और मैं 5 किलोमीटर पैदल जाता था पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में, और 5 किलोमीटर वापस आता था। एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी था कि मेरे को बाहर निकलना पड़ा घर से, और ट्रेनिंग करता था, मैं खुद अपना खाना बनाता था सिंगल हैंड से। तो मैं जब कोई भी कंपटीशन में जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक रहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पाने के लिए सब कुछ। मैं छोटी उम्र में बहुत कुछ खो दिया था, अब मैं क्या खोऊंगा इससे ज्यादा। तो अपने आप को मैं मेंटली तैयार करता हूँ उसके लिए, और इसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सा कम रहता है कि ओलंपिक जैसे गेम में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करें। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि दोनों ओलंपिक में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मैं ज्यादा, देखा जाए तो रियली बाई कंट्री बहुत प्रेशर होता है। दोनों टाइम में इंडिया का ध्वज भाग रहा, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी रहती है। लेकिन उस प्रेशर को आपको कम करना होगा। आप आपके अंदर विल पावर का होना बहुत जरूरी है उस टाइम। देखो, दुनिया कंपटीशन पूरी दुनिया का है, सभी ट्रेनिंग करके आते हैं, ऐसा नहीं। और फैसिलिटी शायद हमारे से कहीं ना कहीं और कंट्रियों के पास ज्यादा है। लेकिन उस टाइम में जो कॉन्फिडेंस में रहता है, जिनकी विल पावर बहुत अच्छी है, वो शायद बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। जी जी सर। सर जैसे आपके परफॉर्मेंस में ओलंपिक्स, ये 2016 के ओलंपिक्स से जस्ट पहले गिरावट थी कुछ जावलिन में, तो उसके बाद सर आपका जो मेंटली जो आपकी वो थी, सोच थी, कि आपने खुद को वापस से कैसे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, ओलंपिक्स में इस बार गोल्ड लेके ही रहना है, वो चीज सर उसके बाद आपकी जो थॉट प्रोसेस थी वो प्लीज थोड़ी सी शेयर करिए। ओलंपिक से पहले मेरी परफॉर्मेंस
जैसे पैरा एशियन गेम्स थे उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, और सिर्फ मैंने 58 प्लस जेवलिन लगाई थी। और 2015 में कतर दोहा में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें मैंने 59 मीटर लगाई और मेरा सिल्वर मेडल था। तो बड़े टूर्नामेंट मैंने कंपटीशन लड़े। उसके बाद जैसे बीच में मैंने वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स भी थी, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारा एक टारगेट था कि जो हमारी पीक परफॉर्मेंस है वो हमें 16 में देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग कर रहे थे। 15 में हमें जेवलिन इतनी नहीं लगानी थी, ये हमारी प्लानिंग थी एक। और हमारा मेन मकसद ओलंपिक था, कहीं ओलंपिक हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी मेरी कम थी, लेकिन मैंने जो मेन परफॉर्मेंस दी थी वो ओलंपिक में दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। सर आप अपनी, जैसे आपने पहले भी बताया कि आप अभी आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, तो सर आप अपना थोड़ा सा डिटेल्ड शेड्यूल बता सकते हैं क्या कि आप सुबह से लेके शाम तक आपका पूरा दिन कैसे बीतता है और आप खाने में क्या खाते हैं, मतलब थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं तो प्लीज। ट्रेनिंग हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में हम लगभग 6:30 से 9 बजे तक हमारी ट्रेनिंग रहती है। जी। मॉर्निंग सेशन रहता है। मॉर्निंग में मैं 5:45 बजे उठता हूँ, उसके बाद ग्राउंड चला जाता हूँ तैयार होकर के, और वहाँ हमारी अलग अलग डे में अलग अलग ट्रेनिंग होती है। अब स्ट्रेंथ पे भी काम करना होता है, स्पीड पे भी काम करना होता है, पावर पे भी काम करना होता है। और इसके अलावा फिर हम आगे ब्रेकफास्ट करते हैं। स्नान करने के बाद में हम सो जाते हैं और लंच पे जाते हैं। ब्रेकफास्ट में हम जूस वगैरह जो भी है, और कुछ अंकुरित अनाज है, ओट्स या दलिया जो भी है, दूध है, केले हैं, फ्रूट, वो लेते हैं। उसके बाद दोपहर का हम लंच लेते हैं। बॉइल वेजिटेबल, दाल, सलाद और दही, यही हमारा नॉर्मल रहता है। एक रोटी रहती है इसमें। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बैठ करके प्लान बनाते हैं स्पोर्ट्स पे कि आज का क्या किया और इवनिंग का हमारा क्या सेशन रहेगा। उसके बाद हम लगभग 5 बजे हम ग्राउंड में चले जाते हैं और 5 से 7:30 बजे तक हमारा वर्कआउट रहता है। जेवलिन पे हम काम करते हैं, जेवलिन की टेक्निक पे काम करते हैं अलग अलग। उसके बाद वापस आए, स्नान किया, और 7:15 बजे हमारा डिनर टाइम होता है। वही सेम डिनर रहता है। स्पाइसी कोई भी खाना नहीं खाता हूँ मैं। बॉयल जितना भी खाना है बॉयल है। दूध, नॉर्थन इंडिया हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि दूध तो हमारा फेवरेट है। जी। शाम को दूध लेते हैं। 9:30 पौने 10 के बीच में मैं सो जाता हूँ, और 9 बजे के बाद में फोन मेरा स्विच ऑफ हो जाता है। फोन से दूर होना बहुत जरूरी है। फोन पे बहुत कम रहता हूँ, दिन में भी ज्यादातर मेरा फोन में स्विच ऑफ ही रखता हूँ, डिस्टर्ब ना हो। ये एक दिनचर्या है मेरी स्पोर्ट्स। सर 9:30 हो रहे हैं, धीरे धीरे हम जल्दी से सेशन वाइंड अप करते हैं। आपका आपका टाइम नहीं लगाएंगे हम। सर अभी कोविड की सिचुएशन है जो आजकल देश में हालत चल रही है, उसमें सर आपका, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ये पूरा देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है क्या कि वो उसमें खुद को कैसे फिट रखें, कैसे मोटिवेटेड रखें, कैसे अपनी हेल्थ के लिए वो कॉन्शियस रहें, उसके लिए जागरूक रहें? बिल्कुल, ये एक, इससे इंडिया ही नहीं दुनिया, जो पूरी वर्ल्ड है, वही वर्ल्ड के सामने ही एक चैलेंज है। और मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको, जो जैसे गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और आप बार बार अपने हाथ धोएं साबुन से या सैनिटाइज से। हो सके इतना बाहर ना निकलें, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो खतरा बढ़ेगा। ये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप बस, इसके बचाव का यही तरीका है कि आप अपने आप को सेफ रखें। और जो भी मेडिसिन, जो अभी इसकी दवाई जो भी आई है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, और उसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लें। और मुझे उम्मीद है आने वाला टाइम में हमारा देश एक बहुत अच्छी कंडीशन में जाएगा। जल्द ही कोरोना से हम मुक्ति पा लेंगे। बस थोड़े दिन की बात है, अभी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
जी सर। सर अब मैं कुछ क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस से लेना चाहूंगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका ट्रेनिंग पैटर्न रेगुलर डेज में होता है और जो कंपटीशन से जस्ट पहले होता है, सर उसमें क्या चेंजेस रहते हैं, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा बताइए। उसमें बहुत बदलाव होता है। हमारे ट्रेनिंग अलग होती है, कंपटीशन टाइम अलग होता है, बट हम 3 या 4 बार उसका एक हमारा इवेंट से पहले हमारी रिहर्सल रहती है कि कितने बजे हमारा इवेंट हो, उस हिसाब से हमें वैसी ट्रेनिंग करते हैं। वार्म अप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक्सरसाइजें घटा देते हैं हम लोग कंपटीशन टाइम में। एक बेसिक वार्म अप होता है, उसके बाद आपको फुल परफॉर्मेंस है वो थ्रो में देनी है आपको, तो आपको एनर्जी सेव करनी है और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकले, हमारा ये टारगेट है। जी सर। सर फिर अगला क्वेश्चन है कि जो जैसे इंजरीज होती हैं एथलीट को, तो उनसे रिकवर करने के लिए उनसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इंजरीज से रिकवर करने के लिए? मैं विशेष तौर पे जूनियर एथलीटों को कहना चाहूंगा इसमें कि आपके छोटी से छोटी इंजरी होती है या बॉडी में कोई सोरनेस है या फटीक है, तो सबसे पहले आप अपने कोच को बताएं। कई बार क्या होता है, बच्चे, जूनियर बच्चे या सीनियर भी थोड़ा सा छिपा जाते हैं। जब आप उसको छिपा जाते हो तो वो इंजरी बढ़ती है फिर, और फिर आपका समय है वो 2 दिन में ठीक होने वाली में 10 दिन लग जाएंगे आपके। और मेरी लाइफ में मुझे बहुत इंजरी हुई है, 10 बार मेरे ग्रोइंग इंजरी हुई है। एल्बो मुझे पता नहीं कितनी बार इंजरी है। शोल्डर है वो मेरे, शोल्डर जेवलिन थ्रो में शोल्डर की इंजरी एक बहुत ही मामूली बात होना, तो शोल्डर इंजरी काफी हुई है। बैक इंजरी काफी हुई है, क्योंकि लंबा एक स्पोर्ट्स करियर रहा है। अब मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ है कि आपकी इंजरी तब होती है कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं हुई। यदि मॉर्निंग में आपने ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है और इवनिंग में आपको फिर से ट्रेनिंग करनी है और बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो फिर आपकी इंजरी की संभावना रहती है। तो मैं जूनियर खिलाड़ियों को विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि आपको कोच को आप जरूर बताएं कभी भी आपकी छोटी मोटी इंजरी हो, कोई पेन हो, क्योंकि वो ही बड़ी इंजरी का रूप ले लेती है एक बार। जी सर। सर एक एक सवाल पूछते हैं कि हम अभी बहुत ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और मतलब हम यहाँ से, जिस इंस्टीट्यूट का हम पार्ट है, हम यहाँ से स्पोर्ट्स में अपने करियर में कैसे आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप। और मैंने शायद 2 या 3 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया भी था कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी के सीईओ बन सकते हो, स्पोर्ट्स पे बहुत बड़ा आप काम कर सकते हो। एक अच्छा एनजीओ बना करके, एक सीएसआर फंड लेकर के कंपनियों से आप, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जितने भी प्लेयर हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सा है। और एक और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया यूएसए या यूरोप में आप देखते हैं कि एक इंजीनियर है वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो क्यों नहीं आपके पास, मैं आईआईटी कानपुर में मैं एक बार आया भी था, आपके पास स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों नहीं आप भी पर डे ट्रेनिंग करें। हो सकता है आईआईटी कानपुर से भी कोई ओलंपिक मेडलिस्ट निकल सके। जी सर, आने वाले टाइम में हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज का लास्ट सवाल हम लेते हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल के डेज में निकनेम क्या था, आपको घर पे क्या बुलाते थे? मेरे को तो मेरी मम्मी अभी भी निकनेम से ही बुलाती है, और जी। मेरे को घर पे पप्पू कहते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा नाम लगता है। आज तो बहुत से, शायद मेरी मम्मी ही कहती है, बाकी तो कोई नहीं कहता मुझे, लेकिन मेरी मम्मी जब मुझे ये नाम लेके पुकारती है तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बचपन के वो दिन भी मुझे याद आते हैं। और जी। हर किसी का मेरे ख्याल से एक निकनेम होता है। हम्म, ठीक है सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेशन। एंड सर हमारी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। सर आप बिल्कुल इस बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करें और वापस से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाएं सर। ऑल द वेरी जी जी बेस्ट। जी, थैंक यू जी, थैंक यू।
Thank you, sir.